Hello, my dear students. I Rahul Mishra, and today we are going to discuss periodic properties of the elements and periodicity. So, listen. First, we will discuss what is periodicity. What is periodicity? So, listen. It is the repetition of properties after a certain interval of the elements. It means एलिमेंट के कुछ इंटरवल के बाद जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिपीट करती हैं. सो दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जांपल, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज. सो लिसन, इन फर्स्ट पीरियड from left to right atomic size decreases. Then we can say in second period atomic size will also be decrease. It means the variation of property will be same in first period, in second period, in third period, or we can say in the after the regular इंटरवल ऑफ दी एलिमेंट्स. इट मीन्स एलिमेंट के रेगुलर इंटरवल के बाद कुछ प्रॉपर्टीज जो है या उनका वेरिएशन क्या होगा, रिपीट करेगा. जैसे पहले पीरियड में एटॉमिक साइज लेफ़्ट टू राइट जाने पर घटता है, वैसे ही दूसरे पीरियड में भी इतने एलिमेंट के इंटरवल के बाद दूसरे पीरियड में भी लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्या होगा, घटेगा. So listen, atomic size we can say it is periodic property. Now listen, some periodic properties of the elements and their periodicity is given below. नीचे कुछ periodic property और उनकी periodicity दी गई है. For example, listen. First one is atomic radius. So what is atomic radius? So atomic radius is the distance between the nucleus of an atom to its outermost cell. So listen, what is atomic radius? Listen, it is the distance between the nucleus and to the outermost cell. This is the outermost cell, this is nucleus. So distance between nucleus, center of nucleus to the outermost shell. So this distance is called as atomic radius. So listen, atomic radius, if atomic radius will be high, then its size will also be high. It means high atomic radius, high atomic size. Low atomic radius, low atomic size. You can understand it from this figure. Here atomic radius is more and here atomic radius is less. So listen, their size will also be different. Now, what is the variation of atomic radius in period? So listen, from left to right in a period atomic radius decreases. It means हम कह सकते हैं जो एटॉमिक रेडियस है वो पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर घटती जाती है. इट मीन्स we can say if atomic size decreases, then atomic radius will also be decreases. Here this atomic radius is greater than this atomic radius. So listen, why it is decreases? Because we all know that any atom contain a nucleus and this nucleus is surrounded by shells. So listen, this is outermost cell and it carries electron. So nucleus is positively charged and electron is negatively charged.
So listen, there will be attraction force between the outermost cell electron and with nucleus. It means जो हमारा आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा. सो लिसन, दिस इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अट्रैक्शन फोर्स. इसी को FOA या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं. एंड लिसन, व्हेन द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इज मच ग्रेटर, अगर इस फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो सेल है वो खींच के न्यूक्लियस के बहुत पास आ जाएगी. इट मीन्स वी कैन से अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत ज़्यादा है तो एटॉमिक साइज हमारा कम होगा. एटॉमिक साइज कम होगा क्योंकि जो आउटर मोस्ट सेल है वो न्यूक्लियस की तरफ खींचती चली जाएगी और एटॉमिक साइज घट जाएगा. सो लिसन, we can say in period the force of attraction is increased. जो force of attraction है वो बढ़ता जा रहा है. when we move left to right in a period, अगर हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच. सो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज, और अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज धीरे धीरे घटता चला जाएगा. इसलिए जो पीरियड में एटॉमिक साइज है वो घटता चला जाता है. अब हम बात करते हैं कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों घटता है, क्यों बढ़ता जाता है. सो लिसन, you can see in case of lithium its atomic number is 3, its electronic configuration is 2,1. It means you can understood it from here. It is very clear. So listen, so 2,1, so its electronic configuration is 2,1 and it is Be, this is second element, and its atomic number is 4, its electronic configuration is 2,2. It means you can see here nucleus attract 1 electron and here nucleus attract 2 electron which are present in outermost cell. यहाँ पर न्यूक्लियस जो है आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट 1 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस आउटर मोस्ट में प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा. लिसन, सो लिथियम, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3 and its configuration is 2,1. Atomic number of beryllium is 4, its electronic configuration is 2,2. So in case of lithium, 2 electron present in first cell and 1 electron present in outermost cell. So listen, here force of attraction will be less, and in this case force of attraction will be more due to increase in the extra electron in outermost cell. हम देख सकते हैं यहाँ पर लिथियम और बेरिलियम का अगर कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है. और हम देख रहे हैं जो न्यूक्लियर चार्ज है वो लिथियम के केस में, न्यूक्लियर चार्ज मीन्स प्रोटॉन, तो लिथियम के केस में कितने प्रोटॉन हैं, 3, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है. और बेरिलियम के केस में कितने प्रोटॉन हैं, 4, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4. इसलिए हम कह सकते हैं जो 4 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, 4 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स ये किसका केस है, बेरिलियम का. तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लिथियम.
लिथियम में क्या है, 3 प्रोटॉन हैं और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो 3 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में जो हमारा आउट फोर्स होता है वो बेरिलियम में ज़्यादा होता है, जिसमें कि 4 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट सेल में। इसलिए अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेरिलियम में ज़्यादा हो जाएगा तो आउटर मोस्ट सेल न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा खींचेगी, और अगर आउटर मोस्ट सेल न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा खींचेगी तो हमारा एटॉमिक साइज बेरिलियम का कम हो जाएगा। Now in group, so atomic size increases in group due to increase in number of shell, क्योंकि जो शेल है वो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती जाती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, दिस इज लिसन, दिस इज फर्स्ट ग्रुप। सो विच ग्रुप इज दिस? दिस इज फर्स्ट ग्रुप। ये पहला ग्रुप है जिसमें हम देख सकते हैं ये पहला ग्रुप है जिसमें हाइड्रोजन में केवल 1 सेल, लिथियम में 2 सेल, सोडियम में 3 सेल, पोटेशियम में 4 सेल। हम देख सकते हैं जैसे ही हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल या कोषों की संख्या या कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है। इसलिए अगर कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो उनका एटॉमिक साइज भी बढ़ जाएगा या उसका परमाणु आकार भी बढ़ जाएगा। सो लिसन, इन केस ऑफ ग्रुप एटॉमिक साइज increases from top to bottom due to increase in number of shell. So listen, what is covalent radius? So it is defined as the half of the distance between two nuclei of same atoms bonded together by a single covalent bond. इसका मतलब ये है कि जब कोई 2 एटम, जैसे हाइड्रोजन, जब कोई 2 एटम किसी कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो इस कोवैलेंट बॉन्ड के आधे पार्ट को कहते हैं कोवैलेंट रेडियस। सो लिसन, वी कैन से इन अनदर वर्ड्स, हम दूसरे शब्दों में भी क्या कह सकते हैं? सो लिसन, it is defined as half of the distance between the 2 nuclei of same atom. It means this is the first hydrogen nuclei and this is second hydrogen nuclei and this is the center of first hydrogen nuclei, this is the center of second hydrogen nuclei. So listen, so half of the distance between the 2 nuclei of same atom which are bonded together by single covalent bond. It means जब कोई 2 एटम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो उनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी के आधे भाग को ही क्या कहते हैं? कोवैलेंट रेडियस। नाउ व्हाट इज आयनिक रेडियस? सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन। वहाँ पर न्यूक्लियस ऑफ एन एटम था एटॉमिक रेडियस के केस में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ एन आयन टू इट्स आउटर मोस्ट सेल। सो व्हाट इज आयनिक रेडियस? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन टू इट्स आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड एज आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस क्या होती है? न्यूक्लियस, किसी आयन के न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच की दूरी, इसे कहते हैं आयनिक रेडियस। बट आप लोग सोच रहे होंगे, यू कैन थिंक दैट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस आर सेम, बट लिसन, दे आर डिफरेंट। व्हाई दे आर डिफरेंट? because in case of atomic radius nucleus of atom is taken
and the distance of the center of nucleus to its outermost cell, this is called as atomic radius. इसका मतलब किसी आइटम के न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल के बीच की दूरी को एटॉमिक रेडियस कहते थे, लेकिन किसी आयन के न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल के बीच की दूरी को कहते हैं आयनिक रेडियस. सो लिसन, व्हाई दे आर डिफरेंट. ये डिफरेंट क्यों होती हैं? बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट Na plus and Na, so listen, this is ion, this is atom. So in case of Na plus, we all know that its atomic number is 11. Its atomic number is 11. We all know that proton equal to atomic number. Number of proton equal to atomic number. So how many proton are there? 11 proton. And how many proton are there? In case of sodium, its atomic number is also 11. So proton will also be 11. But how many electron in Na plus? So electron will be, how many electrons are present in sodium plus ion? There will be 10 electron. And here how many electron will be present? There will be 11 electron, because there is no charge on sodium. So listen, in this case we can say proton is called as nuclear charge. प्रोटॉन को ही हम लोग न्यूक्लियर चार्ज में काउंट करते हैं. ये न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है. तो यहाँ पर 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं सोडियम आयन के केस में, और सोडियम के केस में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो जाहिर सी बात है, जो आयन का एटॉमिक आयन का जो साइज होगा वो उसमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और आइटम के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा? कम होगा. और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयन के केस में ज़्यादा होगा तो इसका एटॉमिक साइज कम होगा, और न्यूट्रल आइटम के केस में एटॉमिक साइज बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम कह सकते हैं, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है. सो लिसन, क्योंकि एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि एटॉमिक रेडियस में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डिफरेंट होता है, और आयनिक रेडियस में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच में डिफरेंट होता है. Now we will discuss van der Waal radius. So what is van der Waal radius? It is defined as half of the distance between two neighboring nuclei of two adjacent molecule. It means जब कोई दो adjacent molecule पास हों, जैसे Cl 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 Cl, it means Cl2 Cl2 molecule जब पास हैं, तो हमको पता है Cl2 जब दोनों molecule पास होंगे तो ये एक स्यूडो फोर्स से जुड़े होते हैं. यहाँ पर एक वीक फोर्स काम करता है जिसे वान डेर वाल फोर्स कहते हैं. तो ये मॉलिक्यूल जो है किससे जुड़े होते हैं? वीक फोर्स से, जिसे वान डेर वाल फोर्स कहते हैं. आप देख सकते हैं जो Cl2 है वो Cl सिंगल बॉन्ड Cl से बना होगा, इसी तरह ये वाला Cl2 भी Cl सिंगल बॉन्ड Cl से बना होगा. इसी तरह इस Cl सिंगल बॉन्ड Cl को हम न्यूक्लियाई की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं. यहाँ पर दो Cl आपस में जुड़े हैं. यू कैन सी here and here two Cls are joined, and listen, these overall molecules are held together by weak force. This is called as van der Waal force. And you can see, आप देख सकते हैं जो इनके नाइबरिंग आइटम हैं, ये वाला और ये वाला, या एडजेसेंट आइटम है अगल बगल वाले, इस Cl के आइटम का न्यूक्लियस और इस Cl आइटम का न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच की
डिस्टेंस ये और उसका अगर हाफ कर दें तो ये हमको मिल जाती है वान डेर वाल रेडियस। इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं वान डेर वाल रेडियस। सो लिसन, व्हाट इज वान डेर वाल रेडियस? इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट आइटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय वान डेर वाल फोर्स। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं दो एडजेसेंट एटम के न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की दूरी के आधे भाग को कहते हैं वान डेर वाल रेडियस। ये जो डिस्टेंस है इतनी, ये वान डेर वाल रेडियस कहलाती है। और कब? जब ये दोनों मॉलिक्यूल किसी वीक फोर्स से जुड़े हों, और जिस फोर्स को कहते हैं वान डेर वाल फोर्स। नाउ so always learn van der Waal radius is always greater than covalent radius। जो van der Waal radius होती है वो हमेशा covalent radius से ज़्यादा होती है। Now we will discuss crystal radius। So what is crystal radius? हम जानते हैं कोई भी क्रिस्टल जो है, जैसे सोडियम का क्रिस्टल है, सो लिसन, देयर विल बी मेनी सोडियम एटम्स, देयर विल बी मेनी सोडियम एटम्स। सो व्हाट इज क्रिस्टल रेडियस? सो इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल न्यूक्लियाई इन इट्स मेटेलिक क्रिस्टल। इट मीन्स मेटल के उस क्रिस्टल में दो मेटल एटम के न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की जो दूरी है उसके आधे भाग को कहते हैं क्रिस्टल रेडियस। सो लिसन, दिस इज क्रिस्टल रेडियस हियर, दिस डिस्टेंस इज क्रिस्टल रेडियस हियर। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी। इट इज reducing nature and metallic character। reducing nature or reducing property। so what is reducing property? reducing nature means what? it is the property of element to reduce other and itself oxidizes। it means किसी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट को reduce करने की जो टेंडेंसी होती है उसे कहते हैं reducing nature, उस एलिमेंट का reducing nature। और एलिमेंट दूसरे को रिड्यूस करेगा लेकिन खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। अगर खुद ऑक्सीडाइज होगा तो जाहिर सी बात है वो उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देगा, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। इसका मतलब जिस एलिमेंट की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज करता है और उसका ऑक्सीडेशन भी ईजिली होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा एलिमेंट का रिड्यूसिंग नेचर होगा वो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस भी उतनी तेज़ी से करेगा, रिड्यूस भी उतनी तेज़ी से करेगा और खुद उतनी ही तेज़ी से ऑक्सीडाइज होगा। इसका मतलब उसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, या हम ये कह सकते हैं उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर भी उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज़्यादा होगा तो वो उतना ही ज़्यादा मेटालिक भी होगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो मेटालिक कैरेक्टर है वो किस पे डिपेंड करता है? रिड्यूसिंग नेचर पे। मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो रिड्यूसिंग नेचर भी ज़्यादा होगा, और मेटालिक कैरेक्टर अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये जो तीनों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड हैं और एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इफ़ वी इंक्रीज मेटालिक कैरेक्टर, its reducing nature increases and its electropositive character will also be increased। तो हमें पता है
जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है, सो लिसन, reducing nature and metallic character of the elements decreases from left to right in a period. जो मेटेलिक कैरेक्टर और रिड्यूसिंग नेचर है वो किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, घटता जाता है. इट डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. नाउ इन ग्रुप we all know that in case of group metallic character increases on moving top to bottom in a group. So metallic in nature or metallic character increases when we move from top to bottom in a group, because number of shell increases, so losing of electron from outermost cell it will be easier. तो देखिए, जो अगर हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ती जाती है. तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी तो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होता चला जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं. तो जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होगा तो इस आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होगा न्यूक्लियस की तरफ वो भी कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा. इसका मतलब हम कह सकते हैं जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ही लूजली बाउंड होगा, ये बहुत ही हल्का बंधा हुआ होगा इन कंपैरिजन टू अबव एलिमेंट. अबव एलिमेंट में एक ही शेल है तो न्यूक्लियस के पास रहेगी, डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा. ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा खींचेगा, और ज़्यादा खींचेगा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं होगा. लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे जो हमारा आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होता जाएगा और इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो गया न्यूक्लियस की तरफ से तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलता जाएगा, और अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन आसानी से होता जाएगा, और ऑक्सीडेशन अगर आसानी से होगा तो उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी बढ़ती जाएगी, और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या निकालते हैं. तो अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलता जाएगा जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी बढ़ेगा, और रिड्यूसिंग नेचर भी बढ़ता जाएगा. इसलिए हम कह सकते हैं मेटेलिक कैरेक्टर एंड रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ फोर्थ ग्रुप. So now what is electronegativity? So electronegativity is represented by En. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को En से प्रदर्शित किया जाता है. So what is electronegativity? It is the tendency of an element to accept shared pair electron between two bonded atoms. It means we can say किन्हीं दो बॉन्डेड एटम में से किसी एटम की शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है, एंड दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इट मीन्स हम कह सकते हैं इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract shared pair electron between two bonded atom. हमें पता है H और Cl दो bonded atom हैं जिनके बीच में दो shared paired electron हैं या एक shared pair है. तो इन shared pair electrons को Cl अपनी तरफ खींच लेगा तो Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला जाएगा, और यही प्रॉपर्टी Cl की बोली जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. Now listen,
important thing is electronegativity is inversely related to size. It means इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। सो लिसन, important thing is fluorine is the most electronegative element in the periodic table. जो फ्लोरीन होता है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माना जाता है। इट मीन्स फ्लोरीन की टेंडेंसी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सबसे ज़्यादा होती है। नाउ व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में कैसे बढ़ती है? तो हमें पता है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। हमको पता है पीरियड में एटॉमिक साइज घटता जाता है लेफ्ट टू राइट जाने पे। अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इन्वर्सली रिलेटेड टू साइज। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी और साइज घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो यहाँ साइज घट रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। नाउ इन ग्रुप we all know that in case of group atomic size increases from top to bottom. it means किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ता जाता है। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। Now we will discuss electron affinity. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? So listen, इसे हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। So what is electron affinity? So listen, when any extra electron is added into the outermost cell of any neutral atom. It means जब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल एटम की आउटर मोस्ट सेल में ऐड किया जाता है या बांधा जाता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बंधेगा तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है रिपल्सन, मीन्स प्रतिकर्षण। ये एक दूसरे को दूर भगाते हैं। सो ड्यू टू दिस रिपल्सन एनर्जी इज रिलीज्ड। इस रिपल्सन के कारण, इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण एनर्जी रिलीज होती है। एंड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जितने अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है उसे ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय EA। इसी को EA से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट्स यूनिट इज जूल पर एटम और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसकी यूनिट जूल पर एटम भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी हो सकती है। नाउ लिसन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज आल्सो इनवर्सली रिलेटेड विद साइज। जो इलेक्ट्रॉन
एफिनिटी है वो भी एटॉमिक साइज के इन्वर्सली रिलेटेड होती है। इट मीन्स एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी, और एटॉमिक साइज अगर घटेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। सो लिसन, what is the variation of electron affinity in period? So we all know that from left to right in a period atomic size decreases, so electron affinity increases. इसका मतलब हम कह सकते हैं, हमको पता है किसी पीरियड में बाएं से दाएं जाने पे या लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज घटता जाता है, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और अगर एटॉमिक साइज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब अगर साइज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। नाउ इन केस ऑफ ग्रुप, वी ऑल नो दैट इन केस ऑफ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसका मतलब क्या है कि अगर ऊपर से नीचे आएंगे ग्रुप में तो एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी। और अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी और आयोडीन की सबसे कम होगी। लेकिन आपको ये याद रखना है, जो फ्लोरीन होता है ये एक्सेप्शन होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl से कम होती है। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन। या हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है और Cl की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों होता है? सो दिस इज अ क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl की ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की कम होती है, ऐसा क्यों? जबकि होना क्या चाहिए था, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी और Cl की कम, बट ऐसा नहीं होता है। फ्लोरीन इज एक्सेप्शन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl। तो क्वेश्चन आपके पास है बहुत अच्छा। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन? So listen, because in case of fluorine, first we will discuss fluorine. In case of fluorine has less atomic size. फ्लोरीन हमारा सबसे ऊपर आता है, इसलिए इसका एटॉमिक साइज कम होता है, क्लोरीन का ज़्यादा होता है। तो फ्लोरीन का साइज कम होता है, और अगर साइज कम होगा तो जो चार्ज अपॉन साइज रेशियो होगा वो ज़्यादा होगा। चार्ज अपॉन साइज रेशियो ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है, साइज नीचे अगर पहुंच जाएगा तो जो चार्ज अपॉन साइज रेशियो होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारा एटॉमिक साइज क्या है, कम है। अगर साइज कम है तो ये जो रेशियो आएगा ये ओवरऑल ज़्यादा आएगा। इसी को कहते हैं चार्ज डेंसिटी, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी होगी वो फ्लोरीन में साइज कम होने के कारण ज़्यादा होगी। अगर फ्लोरीन में साइज कम होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, तो हम जो एक्स्ट्रा ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन, जो हमने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो उस इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन एटम के बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा, और इतना ज़्यादा रिपल्सन होगा कि ये जो एक्स्ट्रा एडेड इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन में आसानी से
नहीं बंध पाएगा, और अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं बंध पाएगा तो हमें बाहर से एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी इसे बांधने के लिए। इसका मतलब जो एनर्जी रिलीज होगी वो फ्लोरीन के केस में कम होगी, क्योंकि एनर्जी रिलीज इसलिए कम होगी क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को बांधना पड़ रहा है, उसके लिए हमको बाहर से एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ रही है, ना कि एनर्जी रिलीज हो रही है। इसलिए फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो बहुत ही कम होती है क्लोरीन के कंपैरिजन में, क्योंकि फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं बनता है, इसलिए एनर्जी भी रिलीज नहीं होती है और हमें बाहर से एक्स्ट्रा अमाउंट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बांधने के लिए देनी पड़ती है। सो लिसन, यू कैन सी द रीजन इज क्लियर एंड इट इज गिवन पॉइंट वाइज। ये पॉइंट वाइज यहाँ पर रीजन बहुत क्लियर दिया हुआ है। सो लिसन, you can understood it very carefully. So in case of fluorine, less atomic size, so high charge upon size ratio, so high electron density, so more repulsion between valence shell and extra added electron. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी फ्लोरीन में तो रिपल्सन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। किसके बीच में? फ्लोरीन की वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल और एक्स्ट्रा एडेड इलेक्ट्रॉन के बीच में, जिससे कि एनर्जी रिलीज नहीं होगी, और एनर्जी रिलीज नहीं होगी अगर, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी। रिलीज होने का मतलब है एवॉल्व होना। नाउ इन केस ऑफ क्लोरीन यू कैन सी atomic size will be high। अगर साइज ज़्यादा है तो चार्ज डेंसिटी कम होगी, और चार्ज डेंसिटी कम होगी या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो रिपल्सन भी कम होगा, और रिपल्सन कम होगा तो जो एक्स्ट्रा एडेड इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस सेल में आसानी से जुड़ जाएगा, और अगर जुड़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की कम होती है। नाउ वी विल डिस्कस बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर। So in period, basic nature of oxide decreases from left to right। किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जो ऑक्साइड का बेसिक नेचर है वो घटता जाता है, जैसे कि आप थर्ड पीरियड में देख सकते हैं। यू कैन सी इन थर्ड पीरियड दिस इज सोडियम ऑक्साइड, इट इज स्ट्रांगली बेसिक। then magnesium oxide, it is basic। Al2O3, it is amphoteric। Amphoteric means both acidic and basic। Similarly, SiO2 and P2O5, these are weakly acidic। SO3 is more acidic, and Cl2O7 is strongly acidic। सो लिसन, हमें पता है कि ये सारे ही थर्ड पीरियड के ऑक्साइड हैं, और हम देख सकते हैं जो बेसिक नेचर है वो धीरे धीरे घट रहा है और एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। सो लिसन, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। नाउ लिसन, what is the basic nature of oxide in group? You can see basic nature of oxide in a group increases from top to bottom।
इसका मतलब है कि अगर हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करें तो ऑक्साइड का जो बेसिक नेचर है वो बढ़ता जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं N2O5 और P2O5 ये दोनों एसिडिक हैं। उसके बाद AS2O3 और Sb2O3 दिस इज एंटीमनी ऑक्साइड, ये दोनों ही एम्फोटेरिक हैं। और Bi2O3 ये बेसिक है। आप देख सकते हैं एसिडिक से बेसिक, इसका मतलब बेसिक नेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किसका? ऑक्साइड्स का। सो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। नाउ वी विल डिस्कस एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड। अब हम देखते हैं हाइड्राइड के एसिडिक नेचर को। सॉल्यूशन इन पीरियड इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड है वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेकंड पीरियड है हमारा, और सेकंड पीरियड में जो हाइड्राइड है LiH और BeH2 ये दोनों ही बेसिक होते हैं, लेकिन जो HF है ये एसिडिक होता है। तो हम कह सकते हैं जो एसिडिक नेचर है हाइड्राइड का वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। किसमें? पीरियड में। इसके बाद हम कह सकते हैं ग्रुप में क्या होता है। तो ग्रुप में एसिडिक नेचर होता है हाइड्राइड का, ये भी बढ़ता जाता है। सॉल्यूशन ये सभी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के हाइड्राइड्स हैं, HF, HCl, HBr और HI। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो ऊपर से नीचे मूव करने पर जो हाइड्राइड का एसिडिक नेचर है वो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब जो HI है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा और ये सबसे अच्छा एसिड भी माना जाता है। तो हाइड्राइड का एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। नाउ वी विल डिस्कस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ENC। इसको ENC से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ENC? सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज व्हाट? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the outermost cell electron with nucleus। It means जो न्यूक्लियस पर नेट अट्रैक्शन फोर्स लगता है किसके कारण? आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के कारण। देन दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। This net force of attraction is called as effective nuclear charge. So listen, it is represented by Z star or Z effective, and its formula is Z minus sigma, where Z is atomic number and sigma is screening constant or shielding coefficient. And this sigma or screening constant, it depends upon the number of electron present in ion। तो हमें पता है अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में तो इसका एटॉमिक साइज छोटा होता जाएगा, क्योंकि जो आउटर मोस्ट सेल है वो धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आती जाएगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में, इसका मतलब एटॉमिक साइज क्या होगा? ज़्यादा होगा। सॉल्यूशन
In period, we all know that effective nuclear charge increases on moving left to right. इसका मतलब पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ता जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो हमें पता है एटॉमिक साइज पीरियड में घटेगा, जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ ग्रुप, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसका मतलब किसी ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम मूव करें तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो घटता जाता है। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के बीच में घटता जाता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो जाहिर सी बात है एटॉमिक साइज ग्रुप में बढ़ता चला जाएगा।